अच्छी वाली, थोड़ा आगे आ जाओ भाई, एक जगह आगे जा बेटा, लाइट नहीं लग रही। और अच्छा लाइट लगा ना, ठीक है रतन। हाँ डन, मैं वही बोल पीछे क्लियर आ रहा है, प्रोफाइल कैसे मारे। On this side. Look here. Center. हो गया राजा भाई, चलो भाई चलो। Yeah, done. Done. Has to be. All fine. Thank you sir. अलग अलग है, ओके। एक केशव आना भाई, पकड़ना प्लीज। फुल तो नहीं ले रहे ना, आधा ले रहे हैं? फुल ले रहे हैं? इतना ले रहे हाफ ले रहे हैं? ओके, दे दो। What a warm welcome and well, good evening ladies and gentlemen, my name is Prerna, I'm your MC for tonight. I want to begin with, we all are following all our Indian traditions, and since all festivals are going on, so let's begin this amazing event with a lamplighting. I would like to request Vinita Rai sir to please come on the stage along with, we have our startups from Raviza, Anuj and Anusmiti on the stage please. Ladies and gentlemen, please put your hands together for them and let's begin on this thrilling evening. Now may I request our executive producer of Music Garage, Mrs. S.K. Aluwalia, I would request you ma'am to please come on the stage for the first song that is being produced by you, and that is Rangreza. Please join hands and let's welcome them. Along with SK, yes ma'am, please Aluwalia ma'am, can we have you on the stage? And we like to, can we have a round of applause
Can you have our director, Junaid Khan? As you're on the stage. Well, I think the loud of your applause is a little lower. We need to put some energy on. Can we have our singer Saurabh Das and Pratiksha Srivastav on the stage, please? Probably they are around. Okay. Music by and lyrics by Yug Busal. Busal, sir. Okay, he's right here. Can you have a round of applause, please? This is the first song release, and I think it has already been released. The whole entire team is right here, and I really want you all to please share them up and make some big noise and make some big round of noise, please. Fantastic. Well, I have a few questions for you, but then to begin with, let's hear the music first. So, let's see the elements. Can we have the music, please? Make sure that the efforts are paid off. Really amazing. I have a small question only to the stars. So, क्या feedback है? आप सुबह से ये stream हो रहा है, and how are you feeling about it? What is your feedback? What's the best? What are you liking about it? Can you have one of my please? It's a very good feeling. Everyone is appreciating the song. It's a very cute video, very lovely everything. So it's a very surreal feeling. Really good. Great. All thanks to our director, Jigar sir. Yeah, it's a great feeling, and actually हमने कुछ मैसेज देने की कोशिश किया इस सॉन्ग से that love doesn't need any language. So in this song, love is on the air. Yeah, absolutely. Yeah. Well, I can see that the purity of love is being resembled, and you both have performed an amazing role into it. And really, thanks Music Raj, right, bringing such amazing content to the platform, and definitely it will take you somewhere really great. Thank you so much, and thank you everybody on the stage. You can please take your seats. Thank you. Big round of applause, please. Big round of applause for them. Well, this is the amazing content that we have brought to you. Now, I would like to introduce the second song, and please welcome with a huge round of applause the whole team. Let's call upon stage Director Arush. I can't hear that. Please, you can give me on the stage, please. I think we have Namisha. Yay! Wow! Let's welcome the Sarkas, Namish, Tanesha, and Steffi Patel. With a big, huge round of applause, let's welcome them, guys! We also have singer and composer for this song, Pratik Gandhi. Mr. Pratik Gandhi, he's here. And the lyrics by Vishwajit Singh. Can we have him on the stage? Vishwajit Singh is here. Overlay the traffic, we can understand. Anyways, guys, a tremendous job. And I have heard about this song. It's like a small town love story, this content. So let's talk about it later. I really wanted to know what is your feeling and how is the feedback and how was your experience. So please, lights off and let's play the music.
your message box must be filled with laddu today. Yeah? Yes. Okay. So let's understand what is your feedback like. After like releasing today, stream or what is your friends, fans are talking about it. So the mic is with. जनरली मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा गाना हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट बट सबने इतना प्रेज किया हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अमर सर और उन्होंने जिन जिन को दिखाया मेरे फ्रेंड्स इवन मेरी को एक्टर भी हम दोनों की परफॉर्मेंस को प्रेज कर रही है सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमने कैसे शूट किया वो हमें पता है हमारे गम हम ही जाने So let's understand that gum part from Steffi. She's the right person to talk about. Yes, sure, please. Steffi बहुत अच्छे से explain करेगी. How was the song, everyone? You liked it? Whoa! I'm glad. So, the audio of the song, Prateek, you've done an amazing. Oh my God, I've been listening it since 20 times since morning. Arush sir, thank you for visualizing what you've done. Amar sir, thank you for, making all of this happen. And yes, sir, you deserve it, of course, Without finances, kahan kuch hota hai. And so this is a small town story, as you can see. और हमने वाराणसी में शूट किया था. So पूरा feel, हम actually, we were roaming in rickshaws और ये सब शूट के लिए हम वैसे ही जा रहे थे. The time we entered Varanasi, we had all of that feels. That हम ऐसे हैं, and I also belong to a small town, so I know how the love stories happen, छोटी-छोटी चीजें मैटर करती है, and I hope that we've portrayed it very well on screen, and बहुत प्यार मिल रहा है सुबह से. Everyone's calling me and they're like such a nice song. Namesh has done such an amazing performance. His expressions are so nice, and so yeah, I mean, as a whole team, मेरे को लगता है we did. I mean. You tell me how was Yes, it? definitely. Yeah. Being as an audience, definitely I really liked it, fallen in love with the song and the music. Especially like both of you really had an amazing job in this. So I believe like Arush sir must have done an amazing. Okay, sir, what was the best part you like about these two? I mean, effortless. Both effortless. I don't have to do anything. I guess I have to explain them once and yeah, that's it. I guess it's there. Wonderful job, guys. Thank you so much for coming on the stage and really amazing to interact with you all. You can please take your seats. Big round of applause for them, everybody. Come on, make some noise. Fantastic. Now, it's time to call upon on stage our special guest for tonight. Let's give a big round of applause and let's welcome Vivek Oberoi sir on the stage. Can we have a round of applause, please, for Vivek sir? I need a mic. Vivek sir, since you have seen both this song released today, what is your views on it? And of course, I'm a big fan of yours. I've been watching your movies, everything. I mean, your songs are so beautiful. You perform a really wonderful job on screen. I'm really big fan of yours. So I just need your views for them as well as for everybody. Like, how was your, share your experience and any feedback if you would like to share. Good evening, everyone. Good to see everybody in the house. Thank you for coming here. सबको मुझे पता है कि कोविड के बाद बहुत सारी दिक्कतें हैं चल रही हैं लोगों की फिर भी everybody's come here in support of this new company on such an auspicious day for Music Garage. So I really appreciate so that please give yourselves a big hand for all of you for making the effort to come here and support a new dream. I'm here because इस कंपनी के आगे बहुत ही होनहार बहुत ही काबिल प्रोड्यूसर हैं who I have great respect for. She's also a personal friend and I think she's going to be in the next 5 years one of those names, one of those producers जहाँ पे सब बोलेंगे अच्छा if it's Shikha's name, SK Ahluwalia is on the name on the product, that means it's going to be a high quality product. So big hand for SK Ahluwalia और Shikha has been here. And कंपनी के आगे ये हैं और कंपनी के पीछे मेरे भाई हैं जो इस वक्त आगे बैठे हैं लेकिन आगे आते नहीं. इनका नाम अमर रहे,
अमर था, अमर है, अमर रहेगा. He's a very, very shy person, but a man with a great vision. Music Garage was his dream, where he himself loves music, he loves the vibrance of youth, he loves the energy that youth brings, and he loves just sheer talent. And एक बात जो बैठे बैठे उनके घर में लिविंग रूम में गप्पे लड़ाते हुए बातें करते हुए निकली, he created a company out of it. Hats off to you, brother. Just to create a platform to promote young talent. I mean, we just saw 2 wonderful videos. We saw 4 wonderful talents, 2 directors, DOPs, their work, music, their work, and sabne, am I right? Right? All are new. All are new. And Music Garage is giving them such a lovely platform so that people can see their work. Aaj, Steffi, right? Am I getting your name right? Steffi. Steffi samne bathi hain. Now, I'm sure so many people are going to watch this, and people who are producers or people who are casting are going to see Steffi's work and saying, oh, she's looking wonderful in this video, and maybe, here's an opportunity for her to take the next step towards a bigger launch and a bigger success in her career. And I think that's what Music Garage is all about. The spirit of Music Garage is to bring good talent out there, give them a platform to prove themselves. And aisa bahut kam hota hai. So hats off to you, Amar bhai. Being an outsider, you're giving a lot of chance, a lot of opportunity to outsiders, to pure talent. And that's what I think the DNA of Music Garage is all about. I wish this company phenomenal success. I hope you have millions and millions of followers and billions of views. And I know that this company is only going to get better and better and go higher and higher with every passing day. So congratulations to everybody, the whole team and everybody who performed here tonight. Fantastic. All the best. Thank you, sir. Now I guess like the house is open for the press, for the questions, and also like we have the dinner doors are open. So everybody, all the guests, dignitaries, you are we are delighted. Thank you so much. Thank you. Congratulations और साथ में दोनों गाने बहुत ही बेहतरीन है. क्या कहना चाहेंगी आज इस मौके पे? I think it's like, when you think of a baby, then you conceive a baby, and then finally the baby is out. It's that emotion. बहुत खुशी है, And like we mentioned, the person who's actually said the dream Amar, I'm just a face here, And yeah. I think Shikha बहुत ज़्यादा humble बन रही हैं. She's not just the face, she's also the hands, the mind. She works very hard on putting all of this together. She's not somebody who was born and brought up in this industry like me. It does not come, क्या कहते हैं, DNA में, genes में नहीं है, but she's kind of developed an aesthetic of her own. And even the content that she's doing, even the films that she's doing, and I know the films that she's coming up with, some of them are just fantastic stories. And I'm really happy that women are coming out with such good films, such good stories. And, Purush Pradhan एक जो industry रही है, वहाँ पे औरतें are taking the bait in and, pushing it, the envelope, and Shikha is one of them. I think that she's going to do the same thing in Music Garage. This is baby steps. अभी शुरुआत ही हुई है. But I'm pretty sure कि जो आगे आने वाले गाने होंगे, they will be even better than this, and this company will keep growing. And एक ऐसे platforms चाहिए जो young talent को recognize करें. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जैसे जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने थोड़ा सा अलग रूट चुना कि मैं अपने पिताजी के बल पर नहीं आऊँगा. आई विल नॉट आस्क माई फादर टू प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर मी. आई विल नॉट आस्क हिम टू लॉन्च मी, जो तब बहुत ही एक चलन था. बट आई डिड नॉट हैव सो मेनी एवेन्यूज़. तब मेरे पास म्यूजिक गराज जैसी कोई कंपनी थी जहाँ पे मैं जाके एक वीडियो बना के अपना टैलेंट दिखा सकता. तो मुझे एक बिल्कुल टेढ़े तरीके से जाके राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में एक ऑडिशन करना पड़ा और पागलपन करना पड़ा. वो मेरी किस्मत थी कि आई गॉट अ चांस, राइट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सबको नहीं मिलता. आई थिंक म्यूजिक गराज इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज जब आप 100 वीडियो बनाओगे और ये कंपनी बनाएगी
जब आप 100 वीडियो बनाओगे तो 100 नए लोगों को टैलेंट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां लोग आपको देख के पसंद कर सकते हैं. एंड बाकी जो लोग आज कास्ट कर रहे हैं, बाकी जो लोग आज फिल्में बना रहे हैं, जैसे मैं कहीं कास्ट कर रहा हूँ, मैंने देखा यार ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं या एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, एंड आई से व्हाई डोंट वी कास्ट हर और व्हाई डोंट वी गिव हिम अ जॉब एज अ डायरेक्टर. तो इस तरह से काम सामने आता है, एंड आई थिंक आई लव दैट अबाउट दिस कंपनी. So विवेक ने तो इतना कुछ कह दिया. How was it for you to get him on board? आज साथ में It's कई चीज़ें किस्मत की होती हैं. You can't say much. He's our destiny. We are very, very fortunate to have him standing here. And I don't think certain things you can't put money on. It's a relation. I think that's what Vivek is to Music Garage. And we're very fortunate to have him because we are a young company, you know. We're not coming with any kind of support like he mentioned. But we're coming with a very beautiful intention that, like everybody knows today, that content is king. But who makes that content, you know, is the zeal of all the newcomers. और हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ है, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट हम सब फिल्मी हैं. हम सब के हेयर स्टाइल बदलते हैं एक्टर्स के हिसाब से, कपड़े बदलते हैं उनके फैशन एरास के हिसाब से. सो वी ऑल आर फिल्मी एट हार्ट, एंड वी रियली बिलीव इन म्यूजिक गैराज टू, you know, give chance to people who nobody is going to give chance to. But once they see them on Music Garage, then, you know, things would change hopefully. Yeah, Right. yeah. hope so. So विवेक congratulate भी करना चाहूँगी Inside Edge की, you know, अरे finally थैंक यू यार, फाइनली सुपर एक्साइटेड. मैं एक्चुअली अभी हाल ही में दुबई था, T20 के मैच देखने गया था अपने बेटे के साथ में, और हम इंडिया को चीयर करने गए थे, और वेरी डिसअपॉइंटेड कि इंडिया हार गई. लेकिन वहाँ पर हर कोई जो मिल रहा था मुझे पूछ रहा था इनसाइड एज 3 कब आ रही है. एंड आई सेड यार यहाँ उस शो के बारे में बात मत करो, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी. But everybody was asking, jokes apart, the fans love it, and we are all excited as a team. Everybody from Farhan, Ritesh, myself, to Karan, Anshuman, the creator, to the entire cast and crew. Everyone's super excited, and इस बार बड़ी टक्कर भी है season 3 में, जैसे आपने पोस्टर में देखा है. My social media handles have been going crazy all day. जब से सुबह announcement आई है तब से people have been reaching out saying super excited. So I'm hoping December 3rd को Inside Edge is received with a lot of love. Right. Besides that, you know, फिल्में कब रिलीज होने वाली हैं आपके साइड से? Because you know, cinemas open हो चुके हैं. We are expecting so much from you. तो नहीं, of course. So there's a bunch of work that I've signed up. I've signed about 6 projects. Some of them are OTT, some of them are for theatrical. सबकी shooting अब शुरू हुई है. To keep my Malayalam fans also happy, I'm doing my South fans. I'm doing a film right now, which is again with the Lucifer team जो थी उनके साथ में दोबारा एक हम रिपीट कर रहे हैं. कड़ुआ, उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, और जनवरी से बाकी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू हो जाएगी. I'm shooting right now for my show with MX Player, and in which I play the protagonist, and Anna is there playing the antagonist. So again, Anna के साथ काम करने का एक बहुत ही बेहतरीन मज़ा आएगा. I've never worked with him. My father has worked with him. I've never had the chance. So now we're working together on a very big, it's a mega project on the platform, on the OTT. उसकी shooting शुरू हो चुकी है. So I'm super excited getting back to work. Thank you so much. Thank you जी. Thank you पाजी. So firstly, congratulate करना चाहूँगी गाने के लिए. गाना बहुत ही अच्छा है. बताना चाहेंगी कुछ, कैसा रहा है? थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको पसंद आया. सब बहुत पसंद कर रहे हैं. तो जो हमारा गाना है अनकहीं बातें, इसको हमने पिकअप किया है कि हमने एक स्मॉल टाउन लव स्टोरी हमने दिखाया है. जो छोटे शहर में जो प्यार होता है ना, वो बड़ा प्योर होता है. ऐसे दूर दूर से इशारे होते हैं, दूर दूर से नज़ारे देखे जाते, यू नो, ऐसा होता है. तो हमने पूरे अपने गाने में बिल्कुल वही एसेंस रखा है. और मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ, तो मुझे पता है वो प्यार कैसा, यू नो, वो होता है. तो ऐसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए वो कैरेक्टर में जाना कि यू नो छोटे शहर में हम कैसे पोर्ट्रेल कर रहे हैं. तो हमने वही पूरे गाने में दिखाया है. एंड नमीश मेरे को एक्टर हैं, तो वो जिस तरीके से मुझे देखते हैं ऐसे झलक में, तो वो सब कुछ हमने पोर्ट्रे किया गाने में. लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो आई एम रियली ग्लैड दैट सबको पसंद आया है गाना.
वेल जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था पोर्ट्रे करना, कभी लव एट फर्स्ट साइट एक्सपीरियंस किया है? हाँ मैं ऑलरेडी ब्रश करने लगी हूँ। मैं एक्चुअली जब मैं क्लास 7th में थी एंड हाँ मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा तो रिवील ही हो जाएगा, बट मैं क्लास 7th में थी एंड तब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। बड़ा फिल्मी सीन था। मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी, उधर से मैं एक टूर्नामेंट के लिए जा रही थी। मैं बैडमिंटन खेलती थी एक्चुअली, तो हम टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे, तो वहाँ से एक प्लेयर आए और मुझे एकदम ऐसे हुआ उफ, लव एट फर्स्ट साइट मेरे लिए वो था। तो आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। काफ़ी बचपन में था बट मुझे है वो। So, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने में कितनी अच्छी हैं आप, या फिर अनकही बातें ही रह जाती हैं? मतलब एक अलग था टाइम बचपन का। और अभी जब एक दूसरी चीज़ होती है, जब हम एक्चुअली शूट करते हैं, हम फिल्म बना रहे हैं या गाने शूट कर रहे हैं, तो वो जोन अलग हो जाता है। वो पूरा टेक्निकलिटी आ जाती है चीज़ें, फिर आपको एक्चुअली वो पोर्ट्रेल एक्ट करना पड़ता है जो नेचुरल लगे। तो बेसिकली मैं और हमारे को एक्टर की केमिस्ट्री, एक्चुअली लोगों ने बोला कि आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो शूट करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ था। डायरेक्ट करते जा रहे थे एंड वी कुड डू इट वेरी इजीली। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमने वाराणसी में शूट किया था, तो वो एक एक्चुअली जो होता है ना, बैकग्राउंड फील भी हमें आ रहा था कि हम एक्चुअली जब शूट करने जा रहे थे तो हम ऐसे ये नहीं कि हम प्रोडक्शन कार से जा रहे थे, हम एक्चुअली वो ई रिक्शा में घूम रहे थे, हम लोकेशंस पे ई रिक्शा में जा रहे थे, वहाँ के लोकल भैया से बोल रहे थे, वहाँ से बात कर रहे थे। तो हम बड़े उस जोन में चले गए थे कि हम ये शूट करने, हम यही लिव करेंगे 3 दिन के लिए। So what was your mom, dad and friends का क्या रिएक्शन था गाना देखने? Yeah, so everyone loved it. Since morning ही मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड्स का and I have shot 4 more songs and more films. But हर एक बोलते हैं ना, हर प्रोजेक्ट कुछ नया होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो एक्चुअली उनका कॉल आया, वो द स्टोरी लुक्स नाइस एंड यू लुक, मुझे एक्चुअली बोला यू लुक वेरी सिंपली इनोसेंट, विच मुझे अच्छा लगता है। हर नए गाने में नया कैरेक्टर, हर फिल्म में नया कैरेक्टर, तो इसमें वो जो सिंप्लिसिटी वाला एसेंस है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील है। पापा को बहुत पसंद आया गाना। पापा वाज लाइक कि बहुत प्यारी लग रही हो। सो इट्स ऑलवेज स्वीट कि पेरेंट्स से वो जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। वेल बिग बॉस सीजन 15 फॉलो कर रही हैं आप? आई एम सॉरी, एक्चुअली पिछले 6-8 महीने में मैं अपनी फिल्म शूट कर रही थी साउथ में एंड थोड़ा मैं टीवी कम फॉलो करती हूँ। वो मुझे बड़ा वो हो जाता है, मैं बड़ी इमोशनल सी हूँ ना, और वहाँ बड़ा अलग सा माहौल चलता है। बट आई रियली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे भी कभी आया था ऐसे बिग बॉस से, बट बेसिकली मैंने शो फॉलो नहीं किया है, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पार्ट ऑफ शो बनूँ या ना बनूँ। बट जो भी चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू इन द हाउस। थैंक यू सो मच। ओह यस, ओके, ये तीनों दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, बहुत चैनल है आप लोगों के। ओके ओके यस। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी सॉन्ग के लिए। थैंक यू। कहीं बातें कभी रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में? हाँ, बहुत सारी रहती हैं। मेरी जो गर्लफ्रेंड है, कभी कभार मुझे आता है गुस्सा, बट मैं अनकही बातें ही हो जाती हैं, मैं वो गुस्सा पी जाता हूँ और मौका देखता हूँ, कभी मौका मिलता है तो बोल देता हूँ। तो अनकही बातें तो रोज़ रहती हैं। कभी जैसे आपसे भी अगर कोई बात होगी तो अनकही रह जाएगी। तो अनकही बातें तो एक बहुत ही अच्छा हमारा कोरस है गाने का, बहुत ही अच्छी लाइन है अनकही बातें। सो हाँ, वो होता रहता है मेरे साथ अक्सर। लव एट फर्स्ट साइट देखने मिला है हमें, आपको हुआ है गाने के अंदर? हाँ। आपको कभी पर्सनली हुआ है लव एट? हाँ, मुझे मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसे लव एट फर्स्ट साइट ही हुआ था। यस, मुंबई लोखंडवाला में ही। वो आज भी मेरे साथी है, 8 साल हो गए हमें साथ में। कहानी ऑलरेडी बहुत फेमस है, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, इट्स ओके। सो कहानी ये है, मैं लोखंडवाला में रेस्टोरेंट में, मैकडोनल्ड्स में अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहा था। तब मैं शायद 17-18 साल का ही था और मैंने एक लड़की को देखा। मुझे पहली बार किसी को देख के बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसा हिप्नोटाइज़ किया उन्होंने मुझे। मैं उठा और पहली बार आई एम स्टिल शाय गाय,
मैं भी थोड़ी बहुत मस्ती करने लगा हूँ, पहले तो मैं वो भी नहीं करता था। सो मैं अचानक से हिप्नोटाइज होकर उनके सामने गया और मैंने बोला व्हाट्स योर नेम? नहीं है, मैंने कहा आर यू ऑन फेसबुक? कह रही नो। मैंने कहा हाउ टू कॉन्टेक्ट यू? शी इज़ लाइक देयर इज़ नो अदर वे। आई एम लाइक कैन यू गिव मी योर नंबर? वो मेरे से इतना डर गई बिकॉज आई एम टॉल एंड शी इज़ मतलब थोड़ी छोटी है मुझसे, शॉर्टर देन मी। देन उनके मुँह से ऐसे 7-5 ऐसे ऐसे करके नंबर निकल गया। एंड लाइक ओके ओके ओके, मतलब मैं चेक करके व्हाट्सएप डीपी चेक मैंने ओके गो। तो उसके बाद से हम 3-4 महीना फ़ोन पे बात करी हमने एज अ फ्रेंड। उनके लिए भी एक न्यू लड़का था दिल्ली से, तो हमने कभी प्रपोज़ नहीं किया बट हम तब से आज तक साथ में, और आई विश हम आगे के 80 साल साथ में रहें। सो ये लॉकडाउन किस तरह से गुजरा और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी दिक्कतें तो बहुत सारी आई, नो डाउट। मेरा एक शो था विद्या, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो, वो इसमें हार्म हुआ। और बाकी जो लोग, ये सब तो स्टिल मैटर नहीं करता है, बट जो लोग गए हैं जिनको कोरोना हुआ था, तब हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, उनके लिए जो दुख था वो अनकही बातें टाइप ही है। क्योंकि मेरे अपने बहुत लोग गए हैं जिनका दर्द आज भी मुझे सता रहा है। तो दुख इसी बात का है कि एक बीमारी से हम लोग बच नहीं पाए और काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं। हमने तो कुछ नहीं किया है, हमसे जो लोगों ने किया, जिनको जो डेली वेजेस पे थे, मतलब यू गेटिंग माई पॉइंट, जो लोग जिनको अभी दिन में कमाते रात को खाते, वो लोग बेगर्स, कितने लोग हैं जो खाने की वजह से ही चले गए होंगे। क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है हमारा, तो उनके लिए बहुत दुख है। काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये कोरोना का टाइम, एंड आई विश अब ये बेटर हो जाए और लोग इन सब की सपोर्ट करें और सब अच्छे से हो जाए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यस। सो बताना चाहेंगे को-स्टार के साथ काम करके कैसा लगा? हाउ वाज शी? स्टेफी जेन्युइनली बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी इंसान भी है। उन्होंने मुझे मेरे एक्ट में पूरा सपोर्ट किया, और मैं थोड़ा सा बात करता हूँ ताकि हमारे सीन्स अच्छे निकले, तो उन्होंने हमेशा सपोर्टिंग थी। हर शॉट को लेके हमने बात की, आप क्या करने वाले हो, मैं अपना बताता था, मैं ये करने वाला हूँ, आप क्या करने वाले हो। तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके, वेरी प्रोफेशनल बिहेवियर। तो जेन्युइनली बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लगा। वेल, गाने के अंदर तो आप नहीं कह पाते, लेकिन रियल लाइफ में आपने कह दिया था, तो गाना अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, उन्हें कैसा लगा, क्या रिएक्शन था? मैं आज ही देख रहा था घर पे, आज ही गाना आया। सो पूरा गाना देखा, पहले फ़ोन पे देखा उन्होंने, तो उन्होंने मुझे पहला कमेंट किया कि तेरा कुर्ता लूज़ था। मैंने कहा अच्छा। सो देन मैंने कहा यार, इसको मैं टीवी पे दिखाता हूँ, तो मैंने टीवी पे वो गाना लगाया। मैंने कहा लाइक अब देखो, तो चल रहा था, तो बीच में एक एक्सप्रेशन आया जो काफ़ी जेन्युइनली रियल आ गया, एंड शी लुक्ड एट मी लाइक नाइस। तो मुझे बस वही याद है उसका, वो नाइस। तो बेसिकली शी इज़ यूज्ड टू नाउ, मतलब वो उनके लिए अब घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप हो गया है कि हाँ शो कर रहा है ठीक है, गाना आया ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप। कोई अपकमिंग अपने प्रोजेक्ट्स बताना चाहिए इसके अलावा? हाँ, एक मेरा खुद का रैप है जो मैंने लिखा था, बेसिकली लॉकडाउन में लिखा था। जो मैंने फ़ील किया सिर्फ मैंने वही लिखा है। मुझे गाने की और म्यूज़िक की ज़्यादा सेंस नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। सो आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दैट। तो वो गाना मैं ऑलमोस्ट प्लान कर रहा हूँ 7 दिसंबर को, और मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। तो वो गाना सिर्फ अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ वो जो फीलिंग है उसको समझने की कोशिश करें। तो ये अभी नेक्स्ट प्लान है। बाकी बातें चल रही हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, बातें चल रही है, किसी के पास बजट नहीं है, किसी के पास किसी को मज़ा नहीं आ रहा है, तो बातें चल रही है। कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट जो भी होगा आई डू एज सून एज पॉसिबल। वेल, वी होप सो टू। यस, थैंक यू, थैंक यू। सीजन 15 कितना फॉलो कर रहे हैं? Yes. को-स्टार जो रह चुकी हैं आपके साथ जिन्होंने काम किया है, वो है शो के अंदर, फॉलो कर रहे हैं? सी यस, मैं फर्स्ट टाइम मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से शिद्दत के साथ मैंने बिग बॉस को फॉलो किया। और उठा लो ना प्लीज़, डर के रहना, मारता भी बाद में। 1 मिनट बस, फिनिश। हाँ, फॉलो कर रहे हैं। यस।
सो मैं शिद्दत से ये शो बिग बॉस 15 फॉलो कर रहा हूँ। सलमान खान सर के लिए तो ऑब्वियसली मैं देखता ही था, बीच बीच के जो ग्लिम्स आते थे, क्योंकि उनका वो ही इज़ अमेजिंग मैन, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और तेजस्वी के लिए इस बार मैंने सारे एपिसोड्स देखे और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए वो लाइव देखने के लिए बट वसूल था। सो यस, मैं तेजस्वी के लिए वो शिद्दत से देख रहा हूँ। तेजस्वी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी काम किया था वैसी ही है या तेजा, मेरा जो तेजा है ना, सी हमारा एक अलग ही हमारी एक अलग ही फ्रेंडशिप है, वेरी यू नो प्रोफेशनल फ्रेंड यू कैन से। और वैसे भी हम लोग, क्योंकि हमने वो मैं टीन एज में था जब मैं स्वराग्नि में था, तो वो टीन एज में क्या होता है, आप बहुत ही क्लियर कट होते हो, आपके जो मन में होता है, तो वो जैसी पहले थी वैसी वो आज है, और वैसी वो खतरों के खिलाड़ी में थी और वैसी वो बिग बॉस में है। तो बल्कि वो और छोटी और बच्ची होती जा रही है। वैसे शी इज़ वेरी क्लेवर, बट वो बहुत ऑनेस्ट खेल रही है। करण के साथ उनकी पेयरिंग कैसी लग रही है? अगर मैं अपने शो का लक्ष्य होता तो मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता, बट मैं नमिश हूँ तो ऑब्वियसली सी वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। करण बहुत ही समझदार लड़का है और तेजस्वी भी काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, और वो जेन्युइनली एक दूसरे की कंपनी उनको अच्छी लग रही है, तो ही वो साथ में है। और तेजस्वी को अगर कोई बंदा नहीं समझ में आता तो उससे नहीं बात करती, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी से बात नहीं करेगी। तो और करण भी ऐसा ही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। वो ऑनेस्टली उसको अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो साथ में है। तेजस्वी ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुकी है, खतरों के खिलाड़ी में, बाकी शोज़ में, टीवी शोज़ में अपने आप को प्रूव कर चुकी है। तो उसको ये सब करके हाइप लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, वो जेन्युइन गेम खेल रही है। बिग बॉस सीजन 13 में गए थे आप बतौर गेस्ट। हाँ, इस सीजन में तो दोस्त है, तो घर के अंदर जाने का इरादा है? सी तब तो मेरा शो ऑन एयर था, विद्या कलर्स का, तो इसलिए हम न्यू ईयर पार्टी पे गए थे, तब भी कंट्रोवर्सी हो गई थी थोड़ी सी। सो पता नहीं, अगर इस बार मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आई डेफिनेटली गो फॉर तेजस्वी। मैंने कुछ सोचा है इस गाने को प्रमोट करने के लिए, बिग बॉस हाउस में जाने का? ये गाना का प्रमोशन इनकी टीम ने, आई डोंट नो, जेन्युइनली आई डोंट नो कि क्या इनके प्लान्स हैं। मैं फर्स्ट गाना किया इनके साथ, बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत ही अच्छा चैनल है, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे सॉर्टेड हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने किया है इसको लॉन्च भी। तो दे नो, आई डोंट नो एनीथिंग। बिसाइड्स तेजस्वी किसी और को कर रहे हैं सपोर्ट, या कोई फेवरेट और कोई? सी अगर तेजस्वी है और मैं किसी को इतना खास जानता नहीं हूँ तो ऑब्वियसली तेजस्वी, बट अदरवाइज़ मुझे शमिता की गेम भी बहुत अच्छी लगती है। शमिता शेट्टी काफ़ी अच्छी गेम खेल रही हैं वो, और मुझे विशाल की गेम अच्छी लगी। अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं वो। हाँ, तो ये मेरे फेवरेट्स हैं। प्रतीक तो समझ ही नहीं आया मुझे, मतलब बेसिकली क्या करे ना, वो ऑलरेडी ये रियलिटी शोज़ कर चुका है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इज़्ज़त बेइज्जती का, तो वो मेरी समझ के बाहर है। और जय भानुशाली मुझे बहुत अच्छे लगते थे, पर यहाँ पे बेसिकली वो समझ ही नहीं पाए हैं बिग बॉस के जगह को, या फिर उनकी फुटेज नहीं लग रही है। दोनों में से कुछ एक है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो उनका कैरेक्टर ही ऐसा बना दिया है फुटेज में कि भाई ये तो कुछ कर नहीं रहा, तो ये भी हो सकता है। यू नेवर नो, बिग बॉस के आज में यू कांट प्रिडिक्ट। मतलब जब मैं गया था, मैं एक मस्ती के लिए गया था और रश्मि से ऐसी बात कर रहा था, और मैंने नॉर्मली ऐसे बोला था कि मैंने बस एक बार कोई फाइट देखी थी, तो मैंने ऐसे ही बोला था कि यार छोड़ना, फाइट होती है ना, छोड़ना, तो जब शेर चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसा कुछ बोला था। तो वहाँ पे जिस तरीके से दिखाया गया, तो वो दिखाया गया सिद्धार्थ के लिए, और सिद्धार्थ से जब मैं पहली बार मिला वहाँ पे, उसका जो ऑरा था, मतलब वो बंदा दिल जीत लिया था उसने मेरा। मैं उससे पहले भी 2-3 बारी पार्टीज़ में मिला था कहीं पे, बट वो उस बंदे का ऑरा ही अलग था। और आज भी आप देखो कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, बट वो है। तो मेरे मन में कभी भी सिड के लिए ऐसा था ही नहीं, और मैं जनरली ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। मतलब उनसे हम चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो बहुत सीनियर है हमसे। तो यू नेवर नो बिग बॉस में क्या, कब किसको क्या दिखा रहे हैं, वो सब क्रिएटिव के हाथ में। देखो अभी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप किसको हेडलाइन बनाओगे, किसको क्या क्रॉप करोगे, वो आपके हाथ में है।
तो बिग बॉस है ही कंट्रोवर्शियल शो, तो उसमें उनको दिखाना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो टीआरपी नहीं आएगी, कंट्रोवर्सी हो रही है तो कैसे हो रही है, कुछ ना कुछ गलत दिखा के हो रही है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है चीज़ें। So as a viewer, शमिता अगर घर से बाहर आ जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि उनके घर के बाहर आने की खबरें आ रही हैं। हाँ, क्योंकि शमिता अच्छी गेम खेल रही है, उसने वो कितने टाइम से उन्होंने कितना काम किया है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस उनके जब वो टीवी पे ही गेम खेलती हैं बिग बॉस तो दिखता है। तो अगर वो आएंगी तो ऐसा लगेगा कि एक और शेरनी कम हो गई, वो शायद एग्जॉस्ट हो गई हैं बस इसलिए। पर कोई नहीं, अगर वो बाहर आएंगी भी तो वो वापस आ जाएंगी रिटर्न, उनको बस 1-2 दिन के गैप की ज़रूरत है यार, है ना। थैंक यू। So, firstly, congratulations for the song. Thank you. Tell us something about the song. What is it? This song is love song. It's all about love. और आपने देखा होगा कि इसमें हमने एक मैसेज दिया है कि लव के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो बोला गया है कि हम मैं और हीरो हम दोनों ही बात नहीं कर सकते हैं, तो we don't need any language. It's all about love. So yeah. So, how was your experience? What was the preparation process for you? एक्चुअली मुझे वो जो साइन टॉक के ऊपर थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा, तो बस दैट वाज क्योंकि इसमें क्या होता है, उन लोगों का कुछ एक स्पेशल वो सब होते हैं, साइन होते हैं, तो उनके लिए वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए? Yes. कितने दिन वर्कशॉप्स? 5 days. या ओके, कितना एंजॉय किया सॉन्ग करते? बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस रहा? ये इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और हम लोग उत्तराखंड टेहरी में शूट किया, तो द लोकेशन वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आई होप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा। राइट, बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? थोड़ा बहुत। कौन है फेवरेट? मुझे शमिता शेट्टी का अच्छा लग रहा है गेम, एंड आई लाइक प्रतीक्स गेम, ही इज़ डूइंग वेरी गुड। मैम, शमिता घर के बाहर निकल रही हैं, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है? अच्छा, मुझे आज अभी पता चला, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। अच्छा, बट आई होप शी विल कम बैक। वेल, कहा जा रहा है कि शायद आ भी सकती है, नहीं? अच्छा, दैट्स सैड बिकॉज शी वाज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रही थी। ओके, लास्टली कौन जीत सकता है? अब मैं तो चाहती हूँ प्रतीक जीते, बिकॉज ही इज डूइंग ऑल अलोन, बहुत अकेले खेल रहा है, तो आई वुड लाइक हिम टू विन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So, firstly, congratulations. Thank you. Very well. Yes. So, how was your experience? It was a very आवाज़ सुन के proud feel हो रहा है? it was wonderful experience. First of all, because as a singer, I wanted to do something, which is like, जो बहुत आगे जाए चीज़। एज अ म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर मैंने काफ़ी चीज़ें करी, बट एज अ सिंगर दिस इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी, यस। So, फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? बिकॉज सब लोग बहुत खुश है। मॉम वाज लाइक कि ये तेरा अलग गाना है कुछ, दैट वाज लाइक हर एक्सप्रेशन टुवर्ड्स इट, सो शी वाज लाइक वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल कंटेंट। यस। सो बताएं कुछ गाने के बारे में, हाउ डिड दिस केम विद यू, कैसा रहा? सो जो इनके एक्चुअल जो प्रोड्यूसर है म्यूजिक गैरेज के, अमर सर है, सो आई मेट हिम पहले, काफ़ी टाइम पहले, फिर और मिला, तो ही वाज लाइक कि हम लेबल चालू कर रहे हैं, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। आई सेड व्हाई नॉट सर। तो होता है कि म्यूज़िक लेके आओ, फिर अपना बेस्ट। मैं सर के पास लेके आया, बहुत सारे गाने वाने लेके, सर ने गाना पिक किया, ऐसा लाइक चलो इसको शूट करते हैं, सी द रिजल्ट्स। वेल, अमेजिंग। बताएं कि मतलब कितना प्रिपरेशन के लिए वक्त लगा, या फिर बहुत टाइम लगा गाने को कंप्लीट होने के लिए। मुझे लगता है शायद ऑडियो में भी मुझे 2 महीने निकल गए, और वीडियो के लिए भी 1-1.5 महीना और गया है, तो इट्स लाइक अ प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। यस। एंड जो अभी आउटपुट आ रहा है वो बहुत लग रहा है सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट है। आप देखिए, लोग पसंद कर रहे हैं सब लोग, और आज लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है कल से ये पिक हो जाएगा बहुत अच्छे से। यस। सो बिसाइड्स दिस, एनी अदर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन? राइट नाउ आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर। कल एक और गाना आ रहा है जी म्यूजिक से, जिसमें मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर कोई और है। सो दैट्स हाउ आई वर्क 360 डिग्री म्यूजिक के अंदर। कभी मैं गाना गाता हूँ, कभी किसी और के लिए बनाता हूँ, इट्स लाइक दैट। ओके, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल का जो गाना है वो, कल का गाना स्टेबिन मैन का गाना है, बहुत बड़ा सिंगर है, तो उसके साथ आ रहा है, और वो म्यूज़िक मैंने प्रोड्यूस किया है। कंपोजर नईम शब्बीर हैं, तो ये लोग आए थे मेरे पास 1.5 साल पहले कि यार ये गाना प्रोड्यूस करना है, एंड वी लाइक योर वर्क,
So that's how it happened, and tomorrow is happening. वेल 2 लाइनें सुने बिना आपसे कैसे जाने दे सकते हैं, तो 2 Okay. लाइनें हो जाएगा। तेरी अनकही बातें मुझे हंस के सुना दे, जाने कहाँ मैं फंसा हूँ मुझे खुद से मिला दे, खोई खोई सी है रातें मुझे चांद दिखा दे, मेरे लबों का है रोजा इफ्तार करा दे। थैंक यू सो मच। Thank you.